Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be covering your experiment number 8 for your DST lab and its title is Implementation of Carry Bypass Adder. This is a shift again from the sequential logic circuits to the combination logics, and this concept is going to be comparatively easier for you because you already know that how does a typical adder or ripple carry adder works. And this is an enhancement in terms of a ripple carry adder, and we will see that how the carry bypass adder, or we also call it a carry skip adder, how both a carry bypass adder or a carry ripple carry adder are different from each other. Its implementation is easier, but however, its concept is a bit tricky to understand. So let's see that how does this work. I have described the lab objectives here, and also I have provided the reference material, which if any of you is interested and can go through this book. Now, a carry skip adder, which we also call carry bypass adder, it is a typical adder, of course, and it is an implementation of that adder which improves the delay of a ripple carry adder with little effort compared to other adders. So this means that a carry skip adder is actually a simpler enhancement in a ripple carry adder design, and we will see that how it is actually different from the ripple carry adder in the later slides. And the improvement of a worst case delay is achieved by using several carry skip adders to form a block carry skip adder. We will also see its working later. Um, there are a simple two combination logic um, designs that we introduce in a ripple carry adder, which converts it into a carry skip adder, which I have described it as with CSA. This CSA is actually representing a carry skip adder. So let's see what does it represent. First, let's try to remember that what is simply an addition. एडिशन के अंदर आपको ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है दैट it has two outputs, sum and cout. This S is representing sum and this cout is representing carry out. और इन both की मैंने यहाँ पर equations mention की हुई हैं. And the other important thing is this PGK signals. Propagate, generate, and kill signals. I'm sure that you're already familiar with these terms from your previous lectures in your DLD and also computer architecture. And in propagate, generate, and kill are actually representing the state of or how the cout, the carry out, is actually behaving in this circuit design. So इसके अंदर important चीज़ to note here is that GI generate and PI propagate and KI kill for any combination of A, B, C in क्या होगा, तो उनका आपस में relationship क्या होगा. GI is related to A and B in the form that A and B are both ANDed together. यानी ये generate जो है ये आपको सिचुएशन ये स्टेट बता रही है सी आउट की, राइट. सिमिलरली पी आई जो है ये सी आउट की स्टेट बता रही है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और के आई स्टेट बता रही है सी आउट की इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो हमारे पास ट्रुथ टेबल का डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इस इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो जी आई कैरी आउट जो है वो जनरेट कब हो रहा है, वो उस वक्त जनरेट हो रहा है जब ए और बी जो है ये दोनों एंड हो रहे हैं, राइट. तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ए और बी जो है वो एंड हो रहे हैं और आउटपुट शुड बी वन. तो इसका मतलब कि हमारे पास ये एक सिचुएशन है ए और बी की जिसके अंदर जी आई इज वन when both A and B are 1. Obviously A और B दोनों 1 होंगे तो ही generate आउटपुट जो है वो 1 होगी.
So regardless of whatever is present in CI या C in के अंदर जो भी present है, it doesn't affect the state of the C out. तो output जो है C out, it will be 1 in both these cases. Similarly, अब हम propagate के ऊपर देखते हैं. Propagate के केस के अंदर A और B के दरमियान XOR ऑपरेशन है. So this means that A and B both should not be equal to each other, right? So either A could be 1 or B could be 1. The other should be opposite of this because XOR का हमें operation already पता है. दोनों inputs दोनों bits अगर opposite to each other हैं तो output आपके पास 1 आएगी, right? तो PI is 1 only in that case when A and B both are not equal to each other. तो यहाँ पर कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ पर A और B both एक दूसरे के इक्वल नहीं है? ये 4 केसेस हैं in which A and B both are not equal to 1. So regardless of whatever is present in Cin, output is equal to Cin. This has hanged a bit. So somehow my ऑनलाइन बोर्ड has stopped working. So इसके अंदर important चीज़ जो है मैं आपको यही बताना चाह रही थी that this is the case when we have uh, A and B both are not equal to each other, these 4 cases, right? और इन 4 cases के अंदर जो भी C in के ऊपर पड़ा हुआ है regardless of whatever is present in C in, it is appearing or it is propagating at C out, right? तो इसका मतलब कि ये एक प्रोपगेशन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. अब सिमिलरली किल किल के आई के अंदर हम देखते हैं व्हेन ए एंड बी बोथ आर इन zero are equal to zero, not is representing a complement is representing the zero condition. तो अगर ये both zero है, so in that case the C out will be killed. C out will be killed means that whatever is present in C in output will be zero, right? तो इसका मतलब कि जनरेट और किल जो है दे आर टोटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. और प्रोपगेट के अंदर जो भी सी इन के अंदर पड़ा होगा वो आपको सी आउट के ऊपर रिसीव होगा, राइट? तो अब हम आते हैं नेक्स्ट. इसी इसी सिनेरियो को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स कि जनरेट के अंदर सी आउट इज इक्वल टू 1 इंडिपेंडेंट ऑफ सी. एंड सिमिलरली प्रोपगेट के अंदर पी सी आउट इज इक्वल टू सी, यानी आपके पास सी इन के अंदर जो भी पड़ा हुआ है दैट विल बी प्रोपगेटिंग टू सी आउट. और किल के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ सी है, सी आउट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? एंड रिपल कैरी एडर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट? तो इसके अंदर सी जीरो और सी इन जो है ये फर्स्ट फुल एडर के अंदर यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है. और यहाँ से इसकी जो सी आउट है दैट इज बिकमिंग द सी इन ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर. Similarly, C out of the second full adder is becoming the C in of the third full adder, and C out of third is becoming the C in of the fourth full adder. और जो finally C out है ये हमें fourth full adder की output के ऊपर receive हो रही है, right? This is the design or this is the block diagram of a 4-bit ripple carry adder. और इसका वर्स्ट केस डिले जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो इस ऑफ एन जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपके पास सी आउट जो है वो सब के सब चारों फुल एडर्स में से पास होता हुआ एट द एंड ऑफ फोर्थ फुल एडर हम लोगों को सी आउट रिसीव हो रहा है. सो दैट मीन्स कि इसका डिले जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल द फुल एडर्स, यानी सब के डिलेस में ऐड अप होने के बाद लीनियरली वो इंक्रीमेंट होता हुआ सी आउट के ऊपर हमें रिसीव होगा, राइट? तो इसका मतलब कि इसका जो क्रिटिकल पाथ है दैट इज क्वाइट अ लॉन्ग क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ मींस कि है मींस दैट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपके पास जो भी सी आउट रिसीव हो रहा है इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है.
राइट। तो अब हम आते हैं इसके अंदर जो हमने फर्दर इम्प्रूवमेंट्स या एनहांसमेंट्स हमने इस डिज़ाइन के अंदर देखनी है विच कन्वर्ट्स और दिस विच मेक्स इट अ कैरी स्किप एडर। तो कैरी स्किप एडर के अंदर सेम डिज़ाइन है, लेकिन उसके अंदर दो कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स जो हैं वो मज़ीद ऐड हुए हैं। फर्स्ट इज एंड, ये हमें एक एंड गेट नज़र आ रहा है यहाँ पर, एंड अदर इज अ मक्स, अ 2 by 1 मक्स, राइट। तो ये एंड गेट जो है, पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों को ये आउटपुट्स S0, S1, S2, S3 और C1, C2, C3 और C4, ये तो ऑलरेडी हमें रिपल कैरी एडर के अंदर भी रिसीव हो रही थी। बट हाउएवर इन कैरी बाईपास एडर हम लोगों ने एक इंटरमीडिएट आउटपुट्स जो है, जो P0, P1, P2 और P3 है, हमने इनको भी जनरेट कर लिया है, या इनको हमने अलग से यूजिंग अ वायर हमने इनको रिट्रीव किया है। ये P0, P1, P2 और P3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोपेगेट बिट्स को, ठीक है। तो प्रोपेगेट बिट्स को हमने जो इंटरमीडिएट आउटपुट्स थी इनको हमने एक एंड गेट्स में से एक एंड गेट में से पास किया है। इस एंड गेट में से पास करने का पर्पस ये है that we already know that AND gate produces 1. It produces 1 only when all of the inputs are equal to 1. And we already know that propagate या P0, P1, P2 and P3 ये किस केस के अंदर 1 हो रहा है, right? That is when both A's and B's या inputs जो हैं वो आपकी एक दूसरे की इक्वल नहीं है। तो इन दैट केस एंड गेट की आउटपुट जो है वो 1 होगी, और जब ये आउटपुट 1 होगी तो ये मक्स में से पास हो रही है, तो मक्स की सेलेक्ट लाइन ये एक्चुअली बन रही है। एंड ये सेलेक्ट लाइन जो है ये डिवाइस करेगी कि आउटपुट में से कौन सा कैरी जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। आइदर इट कुड बी C0, राइट, C0 सेलेक्ट होगा या C4 सेलेक्ट होगा। C0 सेलेक्ट होने का मतलब क्या है? C0 सेलेक्ट होने का मतलब ये है दैट ये जो हमें रेड लाइन शो कर रही है, this is actually showing that all of these full adders will be skipped, यानी C out या C0 जो है ये डायरेक्टली C out के ऊपर रिसीव हो जाएगा when P0, P1, P2, P3 are all equal to 1, राइट। तो इसका मतलब कि ये चारों के चारों फुल एड्रेस स्किप हो जाएंगे और C0 जो है इसका क्रिटिकल पाथ जो है ये मिनिमम हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसका डिले मिनिमम हो जाएगा। एंड आउटपुट के ऊपर या सी आउट जो है दैट विल बी इक्वल टू, सी आउट विल बी इक्वल टू C0 या सी इन। एग्जैक्टली यही यहाँ पर भी यही चीज़ मेंशन हुई हुई है दैट सी आउट विल बी इक्वल टू C0। C03 नहीं होगा एक्चुअली, दिस विल बी इक्वल टू C0। यहाँ पर एक बाय मिस्टेक ये चीज़ मेंशन हो गई है। और अदरवाइज अगर इफ एनी ऑफ द इनपुट्स P0, P1, P2 और P3, अगर इन तीनों में इन चारों में से कोई एक भी इनपुट 0 है, so दैट मीन्स कि आउटपुट जो है एंड गेट की दैट विल बी 0। ज़ीरो सेलेक्ट होने का मतलब ये है, ज़ीरो सेलेक्ट लाइन होने का मतलब ये है कि आपका जो ये कैरी बाईपास एडर है इट विल बी ऑपरेटिंग एज अ रिपल कैरी एडर, दैट मीन्स कि आपके पास अब सी आउट जो है दैट विल बी इक्वल टू C4, यानी चारों फुल एडर्स में से पास होने के बाद जो आपके पास C4 जनरेट हो रही है दैट विल बिकम योर सी आउट। सो दिस मीन्स के जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो उस वक्त होगा जब आपके पास एनी ऑफ P0, P1, P2 एंड P3 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। सो इसका मतलब कि कुछ केसेस के अंदर सम ऑफ द केसेस विल प्रोवाइड अ गुड output or provide a minimum delay at the output, but however कुछ outputs ऐसी भी होंगी जिसके अंदर worst case scenario ही होगा। But however uh, on average if we compare it with a ripple carry adder जिसके अंदर
For all the cases, we cannot skip the delay, or the critical path है that is the same for all types of inputs. Carry bypass adder या carry skip adder जो है that is providing a better critical path for some of the inputs. तो इसी को हमने दोबारा यहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं that C out, C0, that is the C in, carry in is becoming the input to the first full adder, and similarly after ये जो select line जो यहाँ पर BP है, this select line after getting inputs from P0, P1, P2 and P3, इन सब के दरमियान AND operation होने के बाद BP में जो भी receive हो रहा है that will become the select line. तो अगर ये 1 है, so that means कि C in will be selected at output C4, और अगर यहाँ पर 0 select line के अंदर 0 है, so that means कि C4 यहाँ से जो चारों के चारों full adders हैं, इनकी output से जो भी receive हो रहा है that will be coming at the output C4, right? तो यहाँ पर मैंने एक 16 bit C carry skip adder का डिज़ाइन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. ये इसकी एक सिंगल 4 बिट एडर का जो डिज़ाइन है या कैरी स्किप एडर का डिज़ाइन, इसी को एक ब्लॉक डायग्राम से या एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इन चारों ब्लॉक्स को 4 टाइम्स यूज़ करके एक 16 बिट कैरी स्किप एडर डिज़ाइन किया हुआ है. तो इसी this will be your task. Your lab task is that you have to implement a 16 bit carry skip adder or a carry bypass adder using a gate level and behavioral logic. और दूसरा आपने इसका टेस्ट बेंच डिज़ाइन करना है to check its terminology or to check its functionality. एंड ऑल्सो आपने इसकी टाइमिंग डायग्राम भी देखनी है. टाइमिंग डायग्राम के अलावा आपने इसका टाइमिंग डेटा या टाइमिंग टेबल भी रिट्रीव करना है फ्रॉम Xilinx. आई विल टेल यू हाउ. फर्स्ट आई विल explain that how a 4-bit carry skip adder is going to be designed. तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है कैरी स्किप एडर, एंड दिस इज द मेन मॉड्यूल ऑफ कैरी स्किप एडर CSA. और इसके अंदर मैंने फुल एडर, ऑब्वियसली मुझे 4 टाइम्स फुल एडर जो है वो इनहेरिट करना है. मैं इसी जो मेरी यहाँ मेन डायग्राम है कैरी बाईपास एडर की, इसी को यूटिलाइज कर रही हूँ. एंड इट हैज़ 3 इनपुट्स, 3 सेट्स ऑफ इनपुट्स, C0, C0, A0, B0, और ऑब्वियसली इसकी आप 4 बिट्स यूज़ करेंगे, ए की भी और बी की भी. और इसके अलावा आपके पास आउटपुट्स जो हैं सम 4 बिट्स की वो जनरेट हो रही हैं. आउटपुट जो है C आउट, वो मैंने सिंगल बिट रखी है क्योंकि आपके बाकी जो आउटपुट्स हैं दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन, वो आपकी इंटरमीडिएट आउटपुट्स बन रही हैं C1, C2, C3, और ये जो C4 है दैट विल बी योर फाइनल आउटपुट. बट हाउएवर ये भी डिपेंड कर रही है इस एंड गेट और इस मक्स की आउटपुट के ऊपर. तो इसकी लॉजिक हम अभी थोड़ी सी आपको जो प्रीवियस रिपल कैरी एडर था उसकी लॉजिक के अंदर थोड़ी सी एनहांसमेंट्स करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी. तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये किया है कि A और B की तो 4 बिट्स ही हैं, और इनपुट जो है C in दैट इज ऑल्सो अ सिंगल बिट. तो अब जो मैंने एक इंटरमीडिएट आउटपुट्स ली हैं C की वायर which are actually representing these ones, C1, C2 and C3, right? और C4 भी है ऑफ कोर्स इसके अंदर. और P जो है दैट इज द प्रोपगेट. ये जो प्रोपगेट सिग्नल है जो कि रिपल कैरी एडर के अंदर हमने इंटरमीडिएट आउटपुट जो है वो हमने वायर से एक्सट्रैक्ट नहीं की थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस वक्त. लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें इस इंटरमीडिएट आउटपुट्स की ज़रूरत है, P0, P1, P2 एंड P3. सो दैट्स वाई मैंने 4 बिट का यहाँ पर एक वेरिएबल वायर के नाम से रिप्रेजेंट किया, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली एन इंटरमीडिएट आउटपुट. और वायर P आउट जो है ये आपकी
कौन सी आउटपुट रिप्रेजेंट कर रही है? एंड गेट के बाद जो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट आउटपुट रिसीव हो रही होगी, दैट विल बिकम द सेलेक्ट लाइन टू दिस मक्स, राइट? तो ये आपकी फाइनल आउटपुट होगी आफ्टर द एंड गेट, राइट? तो ये मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दी है। तो अब फुल एडर जो मैंने ऑलरेडी एक मॉड्यूल बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको कॉल कर रहा है 4 टाइम्स, और हर दफ़ा आई एम जस्ट पासिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस ब्लॉक डायग्राम, राइट? तो फर्स्ट फुल एडर जो है, इसके अंदर एक इनपुट है A0, सेकेंड इनपुट है B0 और थर्ड इनपुट है C0, जिसको मैंने C इन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट? और इसकी एक आउटपुट है S0 और एक आउटपुट है P0। तो S0 is the first output. ये exactly it is mapping the exact sequence that I defined here. That इसके अंदर first output है S, second output है C out, third output है P जो कि आपकी intermediate है, right? और input है A, इनपुट है A और इनपुट है B और इनपुट है C, बिकॉज ये फुल एडर जो है ये एक सिंगल बिट या सिंगल वायर्स को ही रिसीव कर रहा है, सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 4 बिट्स की ज़रूरत नहीं है, राइट? और मैंने यहाँ पर सिंगल बिट जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको यहाँ पर पास कर दिया है। तो S0 इज पासिंग ऑन टू आउटपुट S, C0 यानी C in is passing on to the input variable C in, सॉरी C0 जो है ये एक्चुअली इसकी आउटपुट है, फर्स्ट फुल एडर की जो आउटपुट है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने C1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया हुआ है विद C in C0। तो ये C0 जो है फर्स्ट फुल एडर की आउटपुट है, और फर्स्ट फुल एडर की एक और जो इंटरमीडिएट आउटपुट है दैट इज P0, और A0 जो है दैट इज द इनपुट ऑफ दिस फुल एडर 1, और फुल एडर 1 की जो सेकेंड इनपुट है दैट इज B0, और फुल एडर 1 की थर्ड इनपुट है दैट इज C in। अब सेकेंड फुल एडर के ऊपर जा रहे हैं, इसके अंदर S0 यानी आपके पास S1 C1 यानी C1 जो है दैट इज द सेकेंड आउटपुट, S1 इज द फर्स्ट आउटपुट, और P1 इज द थर्ड आउटपुट, और A1 और B1 ये तो आपकी सेम सीक्वेंस के अंदर आपके पास वही सेम रहेंगी जो कि आपके पास A0 और B0 की तरह है, बट हाउएवर जो थर्ड आप इनपुट है वो एक्चुअली प्रीवियस प्रीवियस की जो आउटपुट थी, प्रीवियस C आउट जो था या C0 से हमने जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ था, वो अब इसकी C in बन रही है। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली यही किया है कि प्रीवियस की जो C आउट थी that which was C0, it is becoming the C in of the second full adder। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि आपने बाकी फुल एडर्स को किस तरह से कॉल किया, और फाइनली यहाँ पर आपके पास जब C3 जनरेट हो रहा है तो C3 इज द C, यहाँ पर जो C4 एक्चुअली है दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इन दिस वेरीलॉग कोड एज C3। तो ये आपकी फाइनल आउटपुट है जो कि डिपेंड कर रही है इस मल्टीप्लेक्सर के ऊपर कि मल्टीप्लेक्सर के अंदर अगर डिपेंडिंग अपॉन दिस एंड गेट्स आउटपुट आइदर C3 सेलेक्ट होगी या C0 सेलेक्ट होगी, राइट? तो अब एंड गेट की ये क्रूशल आउटपुट है जिसकी एक ही आउटपुट है P आउट। ये एक्चुअली इस एंड गेट की आउटपुट है P0, P1, P2 एंड P3, इन चारों के दरमियान एंड ऑपरेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पर एक इंटरमीडिएट आउटपुट आ रही होगी विच आई हैव नेम्ड एज P आउट, और इस P आउट के साथ P0, P1, P2 एंड P3 आर ऑल एंडिंग, ये आपकी चारों एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, और ये P आउट जो है एक्चुअली इसकी मैंने एक 4 इनपुट एंड गेट यूज़ किया है जिसकी एक ही आउटपुट है P आउट, और बाकी सब इसकी इनपुट्स हैं। तो अब ये P आउट जो है दैट इज बिकमिंग द सेलेक्ट लाइन टू दिस मक्स। मक्स 2x1 का डिज़ाइन भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर आउटपुट एक ही है और बाकी इसकी इनपुट्स हैं। अगर इस सेलेक्ट लाइन इस इनपुट सेलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं ये दोनों इनपुट्स। मैं यहाँ पर ऑलवेज ब्लॉक के अंदर खाली एस भी अगर कॉल कर लूँ तो कोई मसला नहीं है। मैंने बस एक वार्निंग को रिमूव करने के लिए ये D0 D1 को भी इस ब्लॉक के अंदर
as triggering event enter कर लिया है, but however this always block is only dependent upon the select line. तो अब इस select line की value के ऊपर depend कर रहा है कि either D0 select होगी या D1 select होगी. अब बाकी तो आपको मॉड्यूल समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, बट D0 अब मैंने जब यहाँ पर mux को कॉल किया है तो यहाँ पर मैंने C out which is actually the output of this multiplexer जो कि आपकी एक्चुअली यहाँ पर y को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? तो ये सी आउट जो है ये आपकी फाइनल आउटपुट होगी आफ्टर पासिंग ऑल ऑफ दिस दीज फुल एडर्स एंड गेट एंड मक्स. तो ये आपकी सी आउट जो है ये इस मक्स की आउटपुट रिप्रेजेंट कर रही है. और इसकी इनपुट जो है पी आउट, ये पी आउट जो है दैट इज द सेलेक्ट लाइन, यानी ये सेलेक्ट लाइन है. और ये हमें बता रही है कि अगर आउटपुट जो है वो ज़ीरो है, सॉरी सेलेक्ट लाइन जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो आउटपुट y के अंदर D0 सेलेक्ट कर लो. तो D0 के अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ? D0 के अंदर मैं C in पास कर रही हूँ, यानी ये C in का मतलब ये है कि ये सारी ये जो यहाँ पर C0 है दैट विल बी सेलेक्टेड एज आउटपुट. और अगर मैं 1 को सेलेक्ट कर रही हूँ, आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी उल्टी होगी ये लॉजिक. मुझे यहाँ पर ये रखना चाहिए था कि D0 की जगह अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूं कि सेलेक्ट लाइन जो है वो अगर 1 है तो D0 सेलेक्ट करो, तो D0 के अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ? C in, राइट? और अगर सेलेक्ट लाइन जो है वो ज़ीरो है तो D1 को सेलेक्ट कर लो, राइट? एल्स का मतलब ये है कि सेलेक्ट लाइन इज ज़ीरो. ज़ीरो का मतलब ये है कि D1 को सेलेक्ट करो और D1 के अंदर मैं C3 को पास कर रही हूँ. C3 क्या है? C3 इज द फाइनल आउटपुट आउट ऑफ आफ्टर पासिंग ऑल ऑफ दीज फुल एडर्स. तो ये जो आपके पास C4 है, दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल कोड एज C3. तो ये C3 सेलेक्ट हो जाएगी एट आउटपुट, राइट? तो मैंने यहाँ पर भी एग्जैक्टली लॉजिक यही रखी हुई है कि अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 है तो C इन सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर 0 है तो C4 या C3 सेलेक्ट हो जाएगी, राइट? तो एग्जैक्टली मैंने इस लॉजिक को बिल्कुल इसी सीक्वेंस के ऊपर रख दिया. तो लेट्स synthesize it. राइट, तो आई थिंक दिस हैज completed its अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, आई होप सो. राइट, तो इट हैज़ completely सक्सेसफुली completed. तो इसके अंदर एक जस्ट टू चेक दैट इज माय लॉजिक करेक्ट और नॉट, मैं आर्टिकल स्कीमेटिक इसका एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ. राइट, तो इसके अंदर एंड गेट के अंदर क्या पास हो रहा है? पहले तो हम देख लेते हैं कि फुल एडर के अंदर इनपुट A है, B है और C इन है, राइट? और A और B जो हैं ये एक्चुअली 4 बिट्स हैं, तो इसका मतलब कि फुल एडर को बेसिकली ये 4 टाइम्स कॉल हो रहा होगा, तो इसी वजह से A और B के अंदर 4 बिट्स का डेटा रिसीव हो रहा है. आफ्टर दैट इसकी आउटपुट जो है C आउट, दिस इज कमिंग एज इनपुट टू वन ऑफ द इनपुट टू मक्स.
तो यानी सी आउट यानी इसकी जो फुल चारों फुल एडर्स में से पास होने के बाद जो आउटपुट आ रही है वो D1 के अंदर आ रही है। तो D1 जो है वो कब सेलेक्ट हो रही है, जब हमारे पास सेलेक्ट लाइन 0 है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। यस, जब सेलेक्ट लाइन 0 है तो हमारे पास D1 सेलेक्ट हो रही है। और स्किप कब हो रही है, ये स्किप उस वक्त हो रही है जब हमारे पास ये D0 के अंदर आ रही होगी। तो D0 के अंदर जो सी इन है वही D0 के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू जो है ये कहाँ से रिसीव हो रही है, इस एंड गेट की आउटपुट से रिसीव हो रही है। यस एग्जैक्टली विच वी वांटेड कि P0 ये जो आपकी सारी हैं, यस, P0 P1 P2 एंड P3 ये सारी जो है इस एंड गेट के अंदर इनपुट आ रही हैं, और इसकी आउटपुट जो है दैट इज बिकमिंग द सेलेक्ट लाइन, राइट। तो ये जो आपकी है ना इस फुल एडर की जो आउटपुट है एक इंटरमीडिएट P, ये आपकी इस एंड गेट के अंदर एज अ बस यानी 4 बिट बस जो है वो रिसीव हो रही है। ठीक हो गया। और ये सेलेक्ट लाइन जो है इसकी वैल्यू अगर 0 है तो D1 सेलेक्ट होगी, और अगर 1 है तो D0 सेलेक्ट होगी, राइट। 1 है तो D0 सेलेक्ट होगी, और 0 है तो D1 सेलेक्ट होगी, राइट। तो अगर आपने इसको ऑपोजिट भी रखना है तो यहाँ से आप पैरामीटर्स को ऑपोजिट कर लेंगे। C3 की जगह C इन हो जाएगा और C इन की जगह C3 हो जाएगा, राइट। तो ये डिपेंड अपॉन कि आप इसकी किस तरह से लॉजिक बनाते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि टेस्ट बेंच तो मैंने इसका बना लिया था। टेस्ट बेंच के अंदर तो कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ A B और C इन की 8 डिफरेंट वैल्यूज पास करनी है, राइट। मैंने 10-20 नैनो सेकेंड्स का डिले रखा है, और उसके बाद मुझे ये देखना है कि क्योंकि मेरे पास अब ये कैरी स्किप एडर है, तो ऑब्वियसली है तो ये एडर ही, तो मुझे टेस्ट बेंच का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैं टाइमिंग वेव फॉर्म अगर इसकी देखूंगी भी तो उसके अंदर मुझे डिले के बारे में या जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं आउटपुट की, सी आउट की, उसका जो डिले है वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर टूल्स में टाइमिंग एनालाइजर पे जाती हूँ एंड आई क्लिक दिस पोस्ट मैप। तो ये मुझे टाइमिंग डेटा जो है वो जनरेट करके देगा, एंड दैट टाइमिंग डेटा विल एक्चुअली confirm to me that either carry skip adder and carry ripple carry adder, uh, s- sorry, ripple carry adder and carry skip adder are different to each other or not। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट भी दोनों के दरमियान करना चाह रहे हैं तो आप टाइमिंग डेटा जो है उसको ऑब्जर्व करके बोथ को रन करके देख लीजिएगा। कैरी स्किप एडर और कैरी और रिपल कैरी एडर, इन दोनों का टाइमिंग डेटा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों का डिले जो है कैरी आउट कैलकुलेट करने का वो इम्प्रूव हो रहा है CSA में या नहीं हो रहा, राइट। So it's generating the timing table now, it timing data now. राइट, ओके। तो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिले है
ये डिले टेबल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान क्या डिले आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कैरी स्किप एडर, जब आपके पास सी इन और सी आउट, यानी सी इन जो है वो सी आउट के ऊपर रिसीव हो रहा होगा, सो दैट मीन्स आई थिंक यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सो दिस मीन्स कि प्रीवियस लॉजिक वाज करेक्ट, यहाँ पर इसको हमें ज़ीरो ही रखना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ये डिले जो है ये मिनिमम होना चाहिए था। जब हमारे पास सी आउट के ऊपर सी इन रिसीव हो रहा है, सो दिस मीन्स कि यहाँ पर डिले मिनिमम होना चाहिए, बट हाउएवर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमें ये रीजनरेट करना पड़ेगा। और प्रीवियसली इट वाज करेक्ट, तो इसको रीसिंथेसाइज करते हैं, and it has been synthesized. So let's again revisit timing analyzer. Yes, right. Okay, तो अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अगेन। यस, जब हमारे पास सी आउट के ऊपर सी इन रिसीव हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 4.648 डिले रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब डिले से जो सबसे मिनिमम डिले आ रहा है वो यहीं पर ही आ रहा है। सो जिसका मतलब ये हुआ that we have successfully improved the timing or the delay performance, the timing performance of this adder. तो इसका मतलब कि एडिंग तो हो रही है, लेकिन इन द मीन वाइल हम इसके अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हैं। तो आपने जब भी अपनी टास्क सबमिट करवानी है, तो आपने टाइमिंग वेवफॉर्म के अलावा टाइमिंग टेबल भी रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो जब तक आप इस टेबल को नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा दैट आपकी टाइमिंग या आपका जो डिले है ये कितना इम्प्रूव हुआ है। अब इसकी लॉजिक भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये किया था कि सेलेक्ट लाइन अगर ज़ीरो है तो डी ज़ीरो सेलेक्ट करो, और डी ज़ीरो सबसे यहाँ पर मैंने पहले लिखी हुई है डी वन से। तो इसका मतलब कि सेलेक्ट लाइन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपके पास डी ज़ीरो जो है दैट विल बिकम द इनपुट, दैट विल बी सेलेक्टेड एज इनपुट, ठीक है। और डी ज़ीरो के अंदर मैंने सी इन पास किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी आपके पास जब सी 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 इन सेलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये स्किपिंग पार्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। बट हाउएवर अगर आप डी वन सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी सेलेक्ट लाइन अगर आपके पास वन है, तो इसका मतलब डी वन सेलेक्ट हो रही है, तो इन दैट केस आप सी थ्री को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास ये रिपल कैरी एडर की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअली डायग्राम के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने इंश्योर किया है यहाँ पर कि आपके पास सी इन तब सेलेक्ट हो जब आपके पास सेलेक्ट लाइन जो है दैट विल बी ज़ीरो, राइट। और अगर आपके पास C3 यानी आपका सारा रिपल कैरी एडर जो है वो परफॉर्म होना है, तो इन दैट केस आपके पास सेलेक्ट लाइन जो है दैट शुड बी वन, राइट। तो अब आपके पास ये फाइनल आउटपुट जनरेट हो गई, एंड आफ्टर दैट आई होप सो दैट today's experiment has been clear to you, and it is comparatively quite easy as well because adder का concept आपको already पता है, but along with that आपने timing waveform भी इसकी show करवानी है। timing waveform के अंदर सिर्फ simply addition process हो रहा होगा, उसके अंदर आपको delay नहीं नज़र आ रहा होगा, तो that's why यहाँ पर मैंने additional इसका routing delay जो है वो भी आपको represent करके दिखा दिया है, right? So this concludes today's lecture. I'm going to end this session now. Allah Hafiz.